everyone, welcome back to One Page Note series, another episode. So this is going to be a very exciting episode on the uterine prolapse. You are going to cover a big chapter in just 7, 8 or 10 minutes. Okay, so you can buy these one page notes. You can see how beautifully they have been written and presented. You can buy these one page notes from tachycardia.shop. They have been made from multiple resources, all combined, all the high yield information, only the exam based information, very important information in just one page. So yes, let's just revise about the uterine prolapse. So first of all, we have to know about the mechanical factors that actually support the uterus. Okay, so uterus has this one angle is there like this, and then another angle is there. Okay, so there are some mechanical factors that support the uterus. There is angle of anteversion and there is angle of anteflexion. Now what is angle of anteversion? First we'll see that. So angle of anteversion is the angle between the vagina and the cervix, that is 90 degree, and angle of anteflexion is between the cervix और यूट्रस के बीच में जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन, दैट इज 120 डिग्री मोर देन द एंगल ऑफ एंटीवर्जन. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है देखो, प्रोलैप्स पे क्या होता है कि नॉर्मली तुम्हारी यूट्रस जो है वो एंटीवर्टेड होती है. पहला स्टेप जो होता है प्रोलैप्स में दैट इज रेट्रोवर्जन ऑफ द यूट्रस. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द प्रोलैप्स इज गोइंग टू अकर. ठीक है, अब देखो तुम्हारा जो ये जो प्रोलैप्स होता है दैट इज प्रिवेंटेड बाय द यूट्रोसेक्रल लिगामेंट एंड द राउंड लिगामेंट. ठीक है, इट इज प्रिवेंटेड बाय द यूट्रोसेक्रल लिगामेंट एंड द राउंड लिगामेंट. इस पे क्वेश्चन आया हुआ है. एंड द राउंड लिगामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द यूट्रस इन एंटीवर्टेड पोजिशन एंड इट इज द सेकेंडरी सपोर्ट ऑफ द यूट्रस. राउंड लिगामेंट कम्स अंडर सेकेंडरी सपोर्ट. नाउ वी हैव सम ligaments that are actually supporting the uterus. So primary support is very very important asked in your exam. So primary support में तुम्हारा number 1 ligament is your pubocervical ligament. ठीक है, pubic symphysis से cervix तक. ठीक है, then there is transverse cervical ligament. Transverse cervical ligament also known as your cardinal ligament or the Mackenrod ligament. ठीक है, फिर एक होता है यूट्रोसेक्रल लिगामेंट जो कि पीछे से यूट्रस को सपोर्ट करेगा. दिस इज pubocervical, transverse cervical and uterosacral ligament, primary support of the uterus. Then we have the urogenital diaphragm. इसमें तुम्हारी deep transverse perineal muscles भी आएंगी. ठीक है, then we have superficial perineal pouch. Superficial perineal pouch में तुम्हारा bulbospongiosus comes, the superficial transverse perineal muscles comes, ischio-cavernous comes. Okay, now the muscles that are not going to support the uterus that you have to remember, that is the ischio-cavernous and ischio-coccygeus. अगर ये कहीं पे भी ऑप्शन में दिया है यू आर गोइंग टू गो फॉर दिस ऑप्शन. ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट्स द यूट्रस एंड इश्योकैवर्नोसिस और इश्योकॉक्सीजियस, कोई भी अगर ऑप्शन में यू आर गोइंग टू टिक दैट. ठीक है, इश्योकैवर्नोसिस एंड इश्योकॉक्सीजियस. ठीक है, सो okay, muscles that support the uterus are given by blessed, that is your bulbospongiosus, levator ani muscle, external anal sphincter, superficial transverse perineal muscle, external urethral sphincter muscle. Then we have the deep transverse perineal muscles. Okay, these are the muscles that support the uterus given by mnemonic blessed. Now since we are done by the ligament supporting the uterus, now we are going to study about the risk factors that are going to cause the uterine prolapse. So we have menopause. जो भी women menopausal होती हैं जिनकी यूट्रस एटोनिक हो जाती है, एस्थीजिया हो जाता है यूट्रस का, in that the risk is very very high of uterine prolapse. Second is अगर कोई multiparous female है, repeated childbirth, if she is giving, if she is elderly, multiparity है, तो that female is having more chances of uterine prolapse. Then we have congenital prolapse. Okay, तो congenital prolapse का मतलब क्या है, जो कि young women में हो जाए, nulliparous female है जिसमें कोई risk factor नहीं है as such. तो अगर nulliparous female है, she is planning to conceive and but उसमें क्या कहते हैं मतलब हो जाए congenital prolapse. Okay, and another cause of congenital prolapse can be your Ehlers-Danlos syndrome, spina bifida and osteogenesis imperfecta. Now in congenital prolapse, cystocele is not seen. That is important. Usually with uterine prolapse cystocele is seen, but in congenital prolapse cystocele is not seen. How do you manage the congenital prolapse? You are going to do sling surgery or the cervicopexy. Okay, you are going to do sling surgery or the cervicopexy.
Then what we have, okay, this was about the risk factors of the uterine prolapse, and we studied about the congenital prolapse. Now we are going to study about the sling surgery. ठीक है, देखो sling surgery usually is done for the congenital prolapse, or it is done for a young female who is planning to young female who comes with prolapse and she is planning to conceive. Future में उसके plans है to conceive. Now we have anterior sling surgery and we have the posterior sling surgery. Sling surgery में simply हमने क्या करना है कि तुम्हारा जो यूट्रस का सपोर्ट वीक हुआ है उसको स्ट्रेंथन करना है, तो इसमें हमने मर्सिलीन टेप का यूज़ करना है. एक होती है एंटीरियर स्लिंग सर्जरी, इसमें होती है पुरंदरे स्लिंग एंड खन्ना स्लिंग, ये आती है एंटीरियर स्लिंग सर्जरी में. पुरंदरे स्लिंग में क्या है कि एक एंड तुम्हारा इस्थमस ऑफ द यूट्रस में रहेगा और दूसरा एंड जो है वो रेक्टस के फेशिया तक जाएगा. ठीक है, सो रेक्टस, फेशिया एंड इस्थमस, दैट इज पुरंदरे स्लिंग. ये डायनामिक स्लिंग है और इसमें जो है मतलब तभी किया जाता है जब गुड एब्डोमिनल टोन हो, द फीमेल इज हैविंग गुड एब्डोमिनल टोन. कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी लेस है, सक्सेस भी लेस है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. ओके, देन वी हैव खन्ना सर्जरी. खन्ना इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एंटीरियर स्लिंग सर्जरी. इसमें एक एंड इस्थमस पे होगा यूट्रस के, दूसरा एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे होगा. क्योंकि इसको बोन पे अटैच कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ऑस्टाइटिस. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज योर पोस्टीरियर स्लिंग सर्जरी. पोस्टीरियर स्लिंग सर्जरी में एक ही स्लिंग आता है, दैट इज शिरोडकर स्लिंग. ऐसे शिरोडकर सक्सेस रेट इज गोइंग टू बी हाई एंड इट इज अ स्टैटिक स्लिंग, दैट यू हैव टू रिमेंबर. अब शिरोडकर स्लिंग में एक जो एंड है वो तो इस्थमस पे रहेगा, दूसरा वाला एंड अगेन एस से दैट इज सिम्फाइसिस प्यूबिस पे जाएगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस तक जाएगा शिरोडकर स्लिंग. ठीक है, अब शिरोडकर स्लिंग कैसे होता है ना, वो थोड़ा सा मतलब लेफ्ट साइड से ऐसे घूम के जाता है. ठीक है, इट गोज फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सो रिमेंबर दैट. नाउ लेफ्ट साइड पे क्या है, तुम्हारा सिग्मोइड कोलॉन है एंड लेफ्ट साइड पे मेसेंट्रिक वेसल्स हैं, यूरेटर है एंड यू हैव मैनी नर्व्स ऑल्सो. ओके, सो लेफ्ट साइड से ये जाता है एंड शिरोडकर स्लिंग में यू नो कॉम्प्लिकेशंस कैन हैपन मोर ऑन द लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइडेड कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कॉमनली हो सकती है, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सिग्मोइड कोलॉन कैन अकर, इंजरी टू द मेसेंट्रिक वेसल्स कैन अकर, देन यूरेट्रिक इंजरी कैन अकर, जेनाइटोफीमोरल नर्व की इंजरी हो सकती है. ओके, एंड राइट साइड पे एज सच नो कॉम्प्लिकेशंस आर देयर फॉर द शिरोडकर स्लिंग. अब इम्पॉर्टेंट बात ये है, देखो एक कंपोजिट स्लिंग बनाया गया ताकि तुम्हारी लेफ्ट साइड की कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाए. तो कंपोजिट स्लिंग में क्या किया कि लेफ्ट साइड पे तो इन्होंने कर दिया पुरंदरे स्लिंग. ठीक है, दैट इज़ द एंटीरियर स्लिंग सर्जरी, और राइट साइड में इन्होंने रखा शिरोडकर स्लिंग. तो इससे क्या हुआ कि सक्सेस रेट भी बढ़ गया और तुम्हारे कॉम्प्लिकेशंस भी कम रहे. सो विरकुट स्लिंग इज अ कंपोजिट स्लिंग गिविंग बेनिफिट ऑफ लेस कॉम्प्लिकेशंस एंड हाई सक्सेस रेट. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज यूट्राइन प्रोलैप्स के देखो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. यूट्राइन प्रोलैप्स के कॉम्प्लिकेशंस कैन बी कैंसर, देयर कैन बी यू नो UTI, देयर कैन बी किंकिंग ऑफ द यूरेटर, देयर कैन बी इनकार्सिनेशन ऑफ द प्रोलैप्स्ड पार्ट. सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द यूट्राइन प्रोलैप्स. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स. सिम्टम्स आर लाइक योर बैक एक. ठीक है, बैक एक क्यों होगा यूट्राइन प्रोलैप्स के पेशेंट में, क्योंकि जो यूट्रोसेक्रल लिगामेंट है वो काफ़ी स्ट्रेच हो गया है. ठीक है, दैट इज वाई बैक एक इज गोइंग टू अकर. डीक्यूबिटस अल्सर हो जाता है. डीक्यूबिटस अल्सर क्यों हो जाता है यूट्राइन प्रोलैप्स के पेशेंट में, क्योंकि वीनस कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है. अगर कंटिन्यूसली यू नो यूट्रस विल बी प्रोलैप्स, सो दैट कैन रिजल्ट इन डीक्यूबिटस अल्सर. सो दैट वाज अबाउट द यूट्राइन प्रोलैप्स. मोर information is there in the about the uterine prolapse, that will be covered in another 10-minute video. Thank you for watching the video. If you want to buy the one-page notes, you can buy from the website tachycardia.shop. I will be giving the link below in this video in the description section. You can go to that link and buy those notes. Okay, digital notes will be sent to you through WhatsApp and hard copies will be delivered within a week. Okay, thank you.